آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام کو کھولے، جس کے پاس خداوند کا زندہ کلام اور جو ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ اکثر جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں، میرا کہنا یہ فرض ہے ہمارا ماں باپ کا، خدا کے خادموں کا، کہ جو خدا کا کلام پڑھ سکتے ہیں۔ ہم جب بیگ اٹھاتے ہیں اور چیزیں اٹھاتے ہیں تو کیا خدا کا پاک کلام وہ ہم ساتھ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا وہ زیادہ بھاری ہے؟ کیا وہ زیادہ وزن رکھتا ہے؟ ہمارے ایک پادری صاحب ہیں، انہوں نے بیگ اٹھایا تھا میرا 10-15 کلو کا وزن اس کا، تو ہم اسے یہ کہتے ہیں ایک بزرگ اور ایک اتنا بڑا بیگ ہر طرف اٹھائے پھرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس بیگ میں کیا ہے؟ پادری صاحب اکثر کہتے ہیں اے پوری لائبریری لے پھر دیں، یعنی خداوند کا کلام اور بہت سی کتابیں وہ ساتھ اپنے رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں مجھے موقع ملتا ہے میں کھولتا ہوں اور لوگوں کے سامنے بیان کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ خدا کا کلام زندہ کلام، روح کی غذا، ہماری روٹی ہے۔ سو ہمیں تو اس کی ہر وقت ضرورت ہے، ہمیں خدا کا کلام ساتھ رکھنا چاہیے، ہے نا؟ سو جس کے پاس ہے وہ نکالے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے آج جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جو خداوند نے آج مجھے آپ کے لیے کلام دیا، اس کی زندگی کی باتوں کو ہم سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے اور سیکھتے چلے جائیں گے۔ آج جو میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گی وہ میرے ساتھ آپ مل کر نکالے یوحنا کی انجیل پاک، یوحنا کی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 35ویں آیت۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑی 27ویں آیت سے میں شروع کر لیتی ہوں، پھر 35ویں آیت اور پھر اس سے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 6واں باب اور 27ویں آیت سے اب شروع کر کے میں 35ویں، 36ویں اور 37ویں آیت تک بھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں، خدا کے کام انجام دیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جس سے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ پس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں؟ تو کون سا کام کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، آئے خداوند، یہ روٹی
हमको हमेशा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान ना लाए। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। और फिर इससे आगे भी हम सीखते चले जाएंगे खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। और ये यूहन्ना की इंजील जिस पर मैं स्टडी कर रही थी, और उसमें से मैं ये सीखती चली गई कि यूहन्ना की इंजील में हम जो सीखते हैं कि ये जो रोटी है, रोटी के बारे में आप सीखेंगे कि यीशु जिंदगी की रोटी है। और जो हम सीखना चाहते हैं कि यीशु मसीह इंसान की बुनियादी जरूरत है। क्या है? यीशु मसीह इंसान की बुनियादी जरूरत है। क्यों? कि यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है। सो ये रोटी हमारी बुनियादी जरूरत है। हमारी रूहानी जिंदगी के लिए, रूहानी खुराक के लिए हमें जिंदगी की रोटी की जरूरत है। एक खुदावंद के कलाम में अभी मैंने पढ़ा है, यीशु जिंदगी की रोटी है। इसके बारे हम सीखते चले जाएंगे और पढ़ेंगे। और बहुत सा, जैसे मैंने अभी कहा कि जिस तरह यूहन्ना की इंजील में 6 बाब में हम सारा ये पढ़ते जाएंगे कि इसमें ईमान ना लाने वाले यहूदियों ने खुदावंद से निशान तलब किया। जो आयत मैंने अभी पढ़ी है, हमें दिखा, अपने काम दिखा, हमें निशान दिखा। वो निशान तलब करना चाहते थे ताकि देकर हम तुझ पर ईमान लाएं। और यहाँ यीशु कहता है कि तुमने मुझे देख लिया है, देख लिया है, मैं सबसे बड़ा खुद निशान। तुमने मुझे देख लिया, मैं ही तुम्हारे लिए निशान हूं। सो तुम फिर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम यकीन नहीं करते कि जब वो कह रहा है कि मैं जिंदगी की रोटी। इस तरह यूहन्ना की इंजील 32वीं आयत में भी लिखा हुआ है 6 बाब की, खुदावंद के जवाब में 2 बातें जाहिर होती हैं। निशान में जो हम पढ़ते हैं वो निशान तलब करता है। पहली बार जो उन्होंने कहा कि मूसा ने तो आसमानी मन खिलाया, लेकिन जो आसमानी मन है उसके बारे हम ये सीखना चाहते हैं कि वो तो खुदा ने यानी मूसा ने दरख्वास्त की तो वो मन बरसाया गया। वो जो रोटी आसमानी मन आया था वो हमारी जिंदगी तबई जो हमारी जिस्मानी जरूरत थी वो उसके लिए आया था। वो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और हमारी जिंदगी के लिए कि जब तक हम उसे खाते रहें हम जिंदा रहें, हम सेहतमंद रह सकें। इसलिए खुदा ने वो मन बरसाया ताकि जो बियाबान में लोग फिरते हैं, वो जो मूसा के साथ बड़ी कौम आई है, वो मन खाए, सेहतमंद रहे, जिंदा रहे। और जब तक ये अपने निशान की तरफ, अपने उस मुल्क की तरफ नहीं चले जाते, ये मन खाते रहेंगे और ये बटेर खाते रहेंगे, ये गोश्त खाते रहेंगे। 2 बातें जाहिर की। मूसा ने तो मन मांगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा दूसरा जो उसकी ये बात थी कि दूसरी बात ये हकीकी रोटी उसने ना दी, बल्कि हकीकी रोटी यीशु मसीह थी जो आसमान से उतरी। मन तो खुराक थी जो बदन के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी सेहत के लिए भेजा गया, लेकिन दुनियावी जिंदगी के लिए इसकी ये बस यहाँ तक ही अहमियत है कि हम जब तक दुनिया में जिंदा रहें हम ये खाते रहें। लेकिन यहाँ खुदावंद असली और मिसाली और हकीकी रोटी की बात करता है। बाइबल मुकद्दस में असली और हकीकी और मिसाली रोटी की वो बात करता है कि खुदा ने आसमान से जो देता है ये रोटी बदन के लिए नहीं है, बल्कि ये रोटी
रूह के लिए। जो हकीकी रोटी है वो क्या है? वो रूह के लिए रोटी है, जो खुदावंद यीशु मसीह हमारी बुनियादी जरूरत है। और इसके बाद छठा बाब 33वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने एक इंकिशाफ किया कि खुदा की वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरकर दुनिया को तंदुरुस्ती बख्शती है। मन जिंदगी नहीं बख्शता, मन तो हमारी सेहत और तंदुरुस्ती, जो दुनियावी खुराक, बदनी खुराक हम खाते हैं, वो तो सिर्फ हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती और जिंदा रहने के लिए है। लेकिन जो आसमान से रोटी उतरी है वो हमें जिंदगी बख्शती है। ये 33वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि तबई जिंदगी को ये बरकरार रखती है। और ना ये सारी दुनिया के लिए था, बल्कि एक कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए जो मन बरसाया गया, वो तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए, एक कौम के लिए उतरा। हकीकी रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। दुनिया क्या है? इंसान। आसमान से उतरी रोटी इंसानों को जिंदगी बख्शती है। जो इंसान ये हकीकी रोटी खाते हैं हमेशा की जिंदगी पाते हैं। उनकी रूह की ग़िज़ा है, उनकी रूह के लिए ये रोटी बख्शी गई है, जो बाइबल मुकद्दस में हकीकी रोटी का जो जिक्र है। ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, तमाम दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए यीशु मसीह हकीकी रोटी है, जो हमारी बुनियादी जरूरत है। कई लोग इस बुनियादी जरूरत को नहीं जानते। मैंने बहुत से लोगों को हम अक्सर देखते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह रूहानी खुराक को हासिल करने के लिए खुदावंद के पास आते हैं। जितने भी लोग 35वीं आयत में जिस तरह लिखा हुआ है, जितने लोग यीशु के पास आते हैं वो अपनी रूहानी भूख की आसूदगी के लिए इस खुराक को हासिल करते हैं, ताकि उनकी प्यास भी बुझ जाए और वो रूह की ग़िज़ा भी हासिल कर सके। क्योंकि कलाम में लिखा है, भूखे प्यासे मेरे पास आओ, भूख भी मिटेगी और प्यास भी बुझेगी। क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम जो है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है, इसमें से हम सीखते हैं कि हमें हर रोज ये हमारी बुनियादी जरूरत खुदा का कलाम है। यीशु ने खुद कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिस तरह यूहन्ना की इंजील छठा बाब 30वीं आयत में भी यही लिखा है कि उन्होंने निशान मांगा, यकीन ना किया, और फिर उसने उन्हें खाने के लिए रोटी दी। और ज़बूर में भी हम पढ़ते हैं कि जिस तरह मूसा ने कहा 78 बाब 78 ज़बूर 78 और 24वीं आयत में कि खाने के लिए उन पर आसमानी मन बरसाया गया। लेकिन वो आसमानी मन भी खाकर क्या करते थे? बढ़ाते थे। और सानू की दिता ने साडे लिए की है? असी ते उत्थे चुल्हिਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੀਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। मूसा ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ वो मन आसमानी मन खा के भी, गोश्त खा के भी, और बटेर आपको पता है वो बड़े महंगे हैं, ज्यादा लोग वो खा नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े महंगे बटेर है। और खुदा को बटेर खिलाता था, तो फिर भी कहते ले सानू बटेर खिलाता पे, सानू ते बीफ नहीं मिलिया, सानू ते मटन नहीं मिलिया, सानू ते फलां चीज नहीं मिली। यानी उनकी जिंदगी से इतना अच्छा खाना खा के भी बुड़बड़ाहट नहीं की, ना शुक्र ना शुक्र। हर वक्त कई दफा हम कहते हैं कि खुदा ने हमें इतनी बरकतें दी हैं, लेकिन हम फिर भी ना शुक्र रहते हैं इन लोगों की तरह जो बनी इसराइल में फिरते और घूमते ही रहे, उधर चक्कर ही लगाते रहे। क्यों ना शुक्र? उन्होंने खुदा का शुक्र नहीं अदा किया, अपने मन
आसमानी मन और बटेर और गोश्त और इतना कुछ, और चट्टान से पानी, इतना अच्छा पानी हमें उसने पिलाया। आजकल आपको पता है अच्छा पानी, साफ पानी भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग मेहनत करके साफ पानी ढूंढ के लाते हैं। किसके लिए? अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन उस वक्त खुदा ने उनको मीठा पानी प्रोवाइड किया, अच्छा पानी प्रोवाइड किया, साफ पानी प्रोवाइड किया। लेकिन आज लोग पानी भर भर के लाते हैं, फिल्टर्स से लाते हैं, मैं सबको जानती हूँ कि लोग लाते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र है कि हमें फिर भी साफ पानी पीने को मिलता है। हम ना शुक्रे नहीं हैं, हम शुक्र करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए हमें अच्छा खाना अता फरमाता है हमारी। लेकिन वो तो हम बदनी तौर पर हमें लेना ही है, अपनी सेहत के लिए वो खाना हमें लेना ही है। लेकिन हम बात जो आज कर रहे हैं, मेरा आसमानी बाप तुम्हें आसमान की हकीकी रोटी देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम फानी खुराक के लिए मेहनत करते हो। फानी खुराक के लिए यानी अपनी ज़रूरतों के लिए, खाने के लिए हम मेहनत करते हैं, हम फिरते हैं, हम जगह जगह कहते हैं हम ये भी काम कर लें, हम ये भी जॉब कर लें, हम रात की भी कर लें, हम दिन की भी कर लें। क्यों? अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए मेहनत करते हैं, जाफशानी करते हैं, रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अपनी चीज़ों के लिए, सरफराजी के लिए, दुनिया के दिखावे के लिए हम पैसा इकट्ठा करते रहते, मेहनत करते हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम फानी चीज़ों के लिए तो मेहनत करते हो, लेकिन उस खुराक के लिए भी फिक्र करो जो हमेशा की जिंदगी देता है। हमें किस खुराक की ज़रूरत है? जो रूहानी खुराक, हकीकी रोटी जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, हमें उसकी भी जुस्तजू करनी है, हमें उसके लिए भी मेहनत करनी है, हमें उसके लिए भी कलाम पढ़ना है, हम उसके लिए भी रिफाकत रखें, हम उसके लिए भी दुआएं करें, हम उसके लिए भी जमा हों, इकट्ठे हों। जब खुदावंद के घर में कहा जाता है कि आए खुदावंद की इबादत करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद लोग कहते हैं कि पादरी साहब की अपनी ही कोई ज़रूरत है, शायद पादरी साहब सिर्फ अपने नाम के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जो खुदा के खादम जिन्हें मुकर्रर किया गया है, जो काहिन है, वो खुदा के लोगों को आवाज़ देता है। जिस तरह यीशु हर वक्त हमारे लिए बाहें फैलाए रखता है, इसी तरह खुदा के खादम भी आपको खुदावंद के घर में आने के लिए दावत देते हैं कि आए रूहानी खुराक को हासिल करें, आए उस खुराक को हासिल करें जो हमेशा की जिंदगी है। जिंदगी की रोटी यीशु है, और जिस तरह हम कहते हैं उस रोटी में यानी खुदा के कलाम में क्या है? नजात है। खुदा के कलाम में शिफा है। खुदा के कलाम में बड़ी बड़ी बरकत है, मौजज़ात हैं। वो आपको सरफराज करता है खुदा का कलाम, वो आपको तंदुरुस्ती देता है ताकि आप दुनियावी तौर पर जो मेहनत करते हो, सरफराज होते हो, खुदा का कलाम ही आपको सेहत तंदुरुस्ती देता है ताकि आप कुव्वत और तंदुरुस्ती के साथ कमाओ सरफराजी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। लेकिन खुदा का कलाम जो हमारी रूह की ग़ज़ा है, हमें इसकी भी फिक्र करनी चाहिए कि हमें भी ये खुराक हासिल करनी है। जिस तरह हम देखते हैं बदनी तौर पर हमें खुराक की ज़रूरत है। हम कितनी दफ़ा खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं? कोई 3 टाइम खाता है, वो 2 दफ़ा खाता है, वो 4 दफ़ा भी खा लेता है, और कई दफ़ा डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा मील लो, चाहे 5 दफ़ा लो। खाते हैं ना, क्यों लेते हैं? ये अपनी सेहत के लिए,
بدنی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں. تو جو ہم روح کی غذا ہے, جو ہماری روح کے لیے ضروری ہے, وہ ہمیں لینے کے لیے ہم کیوں اس کے پاس نہیں آتے, جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو کھانا کھائیں گے, جتنی خدا نے عمر دی, جتنی خدا نے زندگی دی, 60 سال, 70 سال, 80 سال یا اس سے بھی زیادہ. باری صاحب کہتے ہیں میں 110 سال زندہ رہا, میں نے 80 سال تک خدمت کرنی ہے, اس کے بعد میں دیکھوں گا خدا مجھے کتنی عمر دے. اگر ہم اپنی روحانی زندگی کے لیے, روح کی غذا کے لیے محنت کرتے ہیں, تو پھر وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے, تندرستی ہے, سرفرازی ہے. پھر وہ آپ کو صحت تندرستی دیتا ہے. میں اکثر دعا کرتی ہوں, خداوند اگر تم ہم دونوں کو, پاسٹر صاحب کو اور مجھے, دنیا میں رکھ کے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے, تو پھر ہم دونوں کو صحت اور تندرستی بھی دے, تاکہ خداوندوں کا خدا جو زندہ خدا ہے, اس کے کلام کی گواہی دیتے چلے جائیں, اس کا جلال ظاہر کرتے چلے جائیں, روحوں کو جیتتے چلے جائیں, اس کا کلام پھیلاتے چلے جائیں, کونے کونے تک جائیں, دنیا کی انتہا تک جائیں, لیکن تیرا جلال ظاہر, نہ کہ اپنی شہرت کے لیے, نہ کہ اپنی عزت کے لیے, صرف خداوند کا کلام اور خداوند کی وہ روٹی جو اس نے ہمیں بخش دی ہے, ہم دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں. ہم اس غذا کو, روح کی غذا جو ہماری روح کی تندرستی ہے, جو روح کی صحت ہے, اس کو ہم دوسروں تک بانٹنے والے بن جائیں. اور آپ سب بھی یہ خداوند سے ملتجی ہو سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, خداوند جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے تو ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا, تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر, اور ہم تیری گواہی دیتے ہیں, ہم تیرا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور وہ روح کی غذا, ہمیشہ کی زندگی کی روٹی, حقیقی روٹی ہم دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں, دوسروں میں بانٹے. ہم آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس آ جاؤ, نجات اس کے پاس ہے, بحالی اس کے پاس ہے, شفا اس کے پاس ہے, اطمینان اس کے پاس ہے, سرفرازی اس کے پاس ہے, دل کی مرادیں آپ کی وہ پوری کرتا ہے, درخواستوں کا جواب وہ دیتا ہے, جو کچھ آپ اس سے مانگتے ہو وہ آپ کو عطا کرتا ہے. تو پھر کیوں بعض لوگ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں یسوع کے بغیر, زندگی کی روٹی کو نہیں حاصل کرنا چاہتے, کہتے ہیں آ جاؤ ایتھے کچھ نہیں ملتا, ادھر چلو ویکھو فلانا, دیکھیا جے بابا اینج کردا ہے, تے اور کی کہندے نا ٹائی ٹائیا, ہاں ہاں ٹائی پھڑ تلی تے سروں جماندا ہے, تلی تے سروں بھٹکتے ہیں, خدا سے دور ہیں, یسوع سے دور ہیں, ہمیشہ کی جو زندگی کی روٹی, حقیقی روٹی, وہ لینے نہیں آتے, بلکہ ادھر ادھر اس جہان میں بھٹکے پھرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمیں اطمینان اور سکون اور تسلی اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. شادمانی اس کے پاس ہے. میں خداوند سے اکثر دعا کرتی ہوں, اور مجھے کہتے ہیں یہ جو کلیسیا ہے ہمارا خاندان, ایسے ایک 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 دو تین پوری کلیسیا کے نام مجھے یاد, ایک ایک بندے کا نام مجھے یاد ہے, گھر کے سربراہ کا نام مجھے یاد ہے, یہ پوری لسٹ میرے پاس ہے.
खुदा ने ऐसा मेरे अंदर ये लिस्ट पक्की कर दी है कि मैं एक एक के लिए बरकत की दुआ, सलामती की दुआ, और मुझे पता है किस बंदे को किस चीज की जरूरत है। जिस तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जानता है, वो तो हमारे जानने से पहले ही जानता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। लेकिन दुनियावी माँ बाप होते हुए भी हम जानते हैं, अपने बच्चों का पता होता है कि फलां बच्चे को क्या ज़रूरत है, फलां को क्या ज़रूरत है, फलां को क्या ज़रूरत है, उसको सेहत की ज़रूरत है, उसको रुपए पैसे की ज़रूरत है, उसको घर की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो है उसकी ज़रूरत है। नाम लेती खुदावंद इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, खुदावंद उन्हें बरकत, जो खादम है उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उन पर कलाम के दरवाजे खोल, ताकि ये जो हमेशा की ज़िंदगी हकीकी रोटी है, ये खादम उसे बांटते चले जाएं, ताकि लोग बरकत पाएं इस हमेशा की ज़िंदगी की रोटी के लिए। लेकिन जिस तरह मैं अभी कह रही थी कि लोग भटके फिरते हैं, यीशु को छोड़ के और किधर, यीशु को छोड़ के और नहीं फलान चलिए चर्च है, उथे बड़ी बरकत है। खादम एंड मादती का औधन आपके अंदर ईमान नहीं, जो ईमान के साथ यीशु के पास आ जाता है वहां बरकत है। जो ईमान से उसको पुकारता है वहां बरकत है। कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार और ऐसी ऐसी बातें तुझ पर रास खोलूंगा, वेद खोलूंगा, में से ऐसे भी कुछ लोग हैं, आजकल भी ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम सच्चाई है। जब किसी के सामने सच्चाई की बात करेंगे, हमने तो सच्चाई की बात करनी है, जब सच्चाई की बात कलाम में से बात करेंगे, लोग माइंड कर जाते हैं, लोग गुस्सा करते हैं। लेकिन इस तरह यीशु भी जब अपने शागिर्दों के साथ था और बहुत से लोगों के साथ, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 60वीं आयत 60वीं आयत में आप जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि कुछ लोगों को ये बातें जो यीशु अपने मुंह से कह रहा है, उनको नागवार गुजरी, उनको बुरी लग गई। तो क्या हुआ, जिनको नागवार वो बातें लगी वो तो हो गए, वापस लौट गए, बाय बाय हम जा रहे हैं, ऐ ते गल्लां ही कलाम ही सानू लांदा है, ऐ खादम ते कलाम ही साडे ते दिंदा है। किसी ने कहा बारी साहब तो लगता है आजकल साढ़े ते कलाम दे रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो कुछ खुदा हमें देता है, हमने वो लोगों के सामने रखना है। लेकिन कलाम वो है जो हमारी जिंदगियों में खामियां और कमजोरियां होती हैं, कलाम उधर जाके लगता है। हम फील करते हैं, मैं तो फील करती हूँ कि वाकई ये कलाम जो खुदा का आज मैंने पढ़ा है, ये मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर खामी है, मैं इसको पूरा करूंगी, मैं इसको छोड़ दूंगी। लेकिन शागिर्दों ने कहा ऐ कलाम ही साढ़े लिए नागवार है, असी नहीं मुड़ मुड़ के यीशु को लाना। यीशु ने कहा बाकियां नूं भी जाना चाहते हो तो जाओ, तुसी भी जाओ, क्योंकि यह कलाम तो सच्चाई है। अगर जाना चाहते हो तो नागवार तुहानूं लगदा है, बुरा लगदा है, तो तुसी जाओ, जब आप जाके मजे ले लो दुनिया ते, ठोकर खाओगे, भटकते फिरोगे यीशु के बगैर। यीशु का कलाम सच्चाई है। इसी तरह बाइबल में जो लिखा हुआ है कि वो बहुत से लोग लौट गए, लेकिन पतरस ने कहा, जब यीशु ने दूसरे लोगों को कहा तुसी जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पतरस ने क्या कहा, जिंदगी की बातें, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, चाहे हम भूखे रहें और भी कोई भी मुश्किलात है, लेकिन यीशु के पास जो जिंदगी की बातें सुनने आता है, खुदावन उनको मुश्किलात से निकाल लेता है।
खुदावंद उनको आजमाइशों से निकाल लेता है, खुदावंद उनको फिक्रों से आजाद कर देता है, खुदावंद उनको बीमारियों से शिफा दे देता है। जो यीशु के पास आके ये कहते हैं, यीशु असी तेनू छड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि हमेशा दी जिंदगी दियां गल्लां ते तेरे कोल ने, असी नहीं जावांगे। बेशक तू कलाम कर, जेड़े साड़ी कमी है, जेड़ी साडे अंदर हामी है, असी ओनू खत्म करांगे तेरियां गल्लां सुन सुन के। सो हमें भी हकीकी खुराक के लिए क्या करना चाहिए? यीशु के पास हमें आना चाहिए। आज भी लोग कलाम की सच्चाइयों से भाग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, पारी साहब जी और नहीं नहीं असी नहीं आना, क्योंकि कलाम तो सच्चाई बयान करता है। लेकिन लोग कलाम से भी नाराज हो जाते हैं, उसके चले जाएंगे। लेकिन यीशु के पास आप आ जाओ, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, रूह की ग़ज़ा हासिल करने के लिए, अपनी रूह की ताजगी के लिए, आप हमेशा की और हकीकी रोटी खाने के लिए उसके पास आए, उसकी रिफाकत में आ जाए। रिफाकत रखना भी हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जब हम रफाकत रखेंगे खुदावंद के साथ, यीशु के साथ, उसके लोगों के साथ, खादम के साथ, तो खुदावंद आपको बहुत सी बरकतों से मालामाल करेगा। इमाल की किताब 2 बाब 42वीं आयत में लिखा हुआ है कि रोटी तोड़ना, दुआ करना और क्या 4 बातें, तालीम पाना। तो इसमें अगर हम रोटी तोड़ते हैं, जैसे आज हम खुदावंद की मेज में शामिल होंगे, रोटी तोड़ेंगे, तो क्या आप बरकत पाएंगे? खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा जब आप रोटी तोड़ते, उसके बदन में से खाते, उसके लहू में से पीते हैं। खुदावंद आपको अपनी बरकतों से माला माल करेगा और रूहानी तंदुरुस्ती आपको देगा, रूहानी सेहत आपको देगा जब आप उसकी मेज में शामिल होते हैं, उस रोटी में से आप खाते, रिफाकत रखते, तालीम पाते हो। जो जो हम खुदावंद के घर में आते चले जाएंगे, तो हम तालीम को पाते और सीखते चले जाएंगे। हाँ, तालीम को सीखेंगे, हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, हम उसके इरफान में बढ़ेंगे, हम उसको जानते चले जाएंगे, हम उसको पहचानते चले जाएंगे जो उसकी रिफाकत में आते हैं। जैसे कई दफा हम कहते हैं कि ये हमारी रूह के लिए, जो हम बदनी खुराक के लिए मेहनत करते हैं, भागे फिरते हैं, ठीक है, ये भी हमारी बुनियादी दुनिया में रहते हुए ज़रूरत है। लेकिन रूह के लिए हमारी बुनियादी ज़रूरत यीशु मसीह, हमारी जो हकीकी रोटी हमेशा की ज़िंदगी है, हमें उसमें शामिल। कई दफ़ा शैतान हमें फंसाता है। आज इतवार है ना, आज बड़े लोग गर्मी लगी हुई है, गर्मी है। मैं भी कहती, मैंने सुबह आपने कहा आज गर्मी बड़ी, आज बड़ी गर्मी। शैतान ने उनको ऐसा उसके दिमाग में डाल दिया, माइंड में, अजना जाना गर्मी बड़ी जे, हब्स बड़ी जे है, सांस नहीं निकलता। लेकिन ये भी बहाने, ये बाइबल मुकद्दस ये दिल ला इलाज हिलेबाज हिलेबाज, असी बड़े हिले, नहीं नहीं आज नहीं जाना। चलो दुनियावी तौर पर अगर हम कहीं जाते हैं, फिर कहीं तक गर्मी बड़ी है पर जाना जरूर है, पहुंचना जरूर है। वो फलाना के माइंड ना कर जे, कोई गल नहीं, गर्मी तो उत्थे बड़ी होएगी, लेकिन जाना भी है, अपनी इज्जत लिए, अपनी शोहरत लिए, अगले को खुश करने लिए। इधर हम बहाने लगाते हैं खुदा के घर आने में, आज बड़ी गर्मी है। एक हमारी बहन थी, मुझे कहती, यास्मीन गर्मी बड़ी है, मैं हंस पड़ी।
کیا گرمی پڑی ہے. تو گرمی ہماری جسم کے لیے بدنی طور پہ ہمارے لیے اس کی ضرورت ہے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسام بند ہے وہ کھل جاتے ہیں, ہمارا فیشل ہو جاتا ہے, ہمارا رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ, جو گرمیوں میں بند ہو جاتے ہیں سردیوں میں. اس کی بھی ضرورت ہے. میں نے کہا آپ جو پھل کھاتے ہو, آئے امب بڑے میٹھے آئے آج کل, تربوز دے اتی جتنی دھوپ پئی اونا ہی میٹھا آیا. تو کیا گرمی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہاں, پھل کھاؤ گے تو پکے پھل کھاؤ گے, گرمی اور دھوپ کی وجہ سے وہ میٹھے ہوں گے. جو بھی پھل کھاؤ گے تو کیا اس کی گرمی کی آپ کو ضرورت ہے نا؟ تو پھر کہتے ہیں سردی بڑی آ گئی ہے, گرمی چنگی ہوندی سی. یہ ہے ہیلے اور بہانے خدا کے گھر میں آنے کے لیے کہ اسی چرچ نہیں جانا, گرمی بڑی ہے, اسی سردی بڑی ہے, چرچ نہیں جانا, باہر تے بڑی برف ہے. لیکن میں نے یورپ میں, امریکہ میں جا کے دیکھا برف پڑتی ہے, گھٹنوں برف ہے, لیکن چرچ کے آگے ایسے پارکنگ بھری ہوتی ہے گاڑیوں کی. لوگ چرچ میں آتے ہیں, وہ اپنا انتظام اس طرح کا کرتے ہیں. کوئی ہیلا, کوئی بہانہ نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے, سب نے چھتریاں پکڑی ہیں, چرچ میں گھس رہے ہیں. کوئی ہیلا بہانہ نہیں. خدا کے گھر میں آتے. کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آج ہم نے روح کی غذا لینی ہے. دنیا دیا غذامت سے چار والے کھا لینے آ تے کیا ساڑھے لی اے ضروری نہیں کہ ہفتے چی کواری تے سی غذا کھانا آ جائیے چرچ خدا دے کاج. کئی لوگ تے ہفتے بعد بھی آنا پسند نہیں کرتے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا, اب اسی چرچ نہیں جانتے ہیں. روحانی کو کیا انہیں ضرورت نہیں ہے روح کی غذا کے لیے؟ اگر آپ اپنی جسمانی صحت, بدنی صحت کے لیے 3 ٹائم 4 ٹائم 2 ٹائم کھانا کھاتے ہو نا, تو کیا روحانی طور پر غذا کو کھانے کے لیے ہم خدا کے گھر میں ایک ہفتے بعد بھی نہیں آنا پسند کرتے؟ وہ کہتے نہیں پھر جاؤں گے, اور کوئی گل نہیں, روح دی غذا ہے نا, کوئی گل نہیں ہے, روٹی پھر کھانا. لیکن جس طرح پادری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اس کی پاک میز میں شامل ہونے کے لیے چاہے آپ جو بھی کام کرتے ہو دنیا میں بیزی ہو, اس کے گھر میں آؤ. روح کی غذا, یسوع کا لہو اور اس کا بدن لینے کے لیے, اس کی میز میں شریک ہونے کے لیے ہمیں اس کے پاس آنا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ شیطان اکساتا ہے ہمیں, چھٹو کرا نہ جاؤ. یسوع مسیح بڑی مثال ہمارے سامنے. یسوع مسیح بیابان میں تھے, تو ابلیس آ گیا, بڑا چلاک ہوشیار, آج بھی بڑیاں چلاکیاں مارتا ہے, ہوشیاریاں دکھاتا. میں نے یہ بھی دیکھا بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں جو اس کی چلاکیوں میں نہیں آتے, وہ آ جاتے ہیں روٹی کھانے, روح کی غذا حاصل کرنے کے لیے. شیطان آیا یسوع کے پاس, اس نے کہا پتھر کو کہہ روٹی بن جا. اس نے کیا جواب دیا یسوع نے؟ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ اس سے جو اس کے کلام جو اس کے منہ سے نکلتا ہے. یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے جو یسوع ہمیں دیتا ہے. آپ بھی جھڑک سکتے ہو, شیطان کو جھڑک سکتے ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے چل تو نہ جا, میں جانا ہوں. بیوی کہہ دیں میں جا چلی ہوں, تسی گھر رہو, آج کسی نے آنا ہے. ہر ایک کے لیے روح کی غذا, ہر ایک کے لیے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, جوان ہے, بزرگ ہے, ہماری روح کی تازگی, روح کی بھوک اور پیاس کے لیے ہمیں یسوع کے کلام کی کیا ہے ضرورت ہے. خدا ان کے پاس آئیں, دعائیں کریں اور روحانی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آپ آتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو اور کلام پڑھو. اس سے رہنمائی ملتی ہے, اس سے قوت ملتی ہے, اس سے طاقت ملتی ہے, اس سے تازگی ملتی ہے.
कलाम में लिखा है, कलाम जो सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें, फिर बोले, सच्चाई तुम्हें, तो क्या कलाम सच्चाई है? आप अपनी फिक्रे परेशानियां लेकर उसके पास आए, खुदा का कलाम आपको आजाद कर देगा। खुदा का कलाम आपके घर में खानदानी बरकत को लेकर के आएगा। खुदा का कलाम आपके खानदानों में बरकत लेकर के आएगा और हर तरह की बीमारियों से भी शिफा, हर तरह की परेशानियों से भी निजात और शादमानी और तसल्ली उसके पास। कलाम सच्चाई, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है मत्ती की इंजील 11 बाब और 28वीं आयत में, ऐ बहुत से दबे थके मांदे लोगों, मैं तुम्हें, अगर आप थक चुके हैं, परेशान हैं, तरह तरह की दुनियावी आजमाइशें, हार जाते हैं हम, थक जाते हैं हम, लेकिन खुदावंद का कलाम यीशु मसीह हमें कहता है, ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास है। जो कुछ बोझ हैं, जो कुछ परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो आजमाइशें हैं, मेरे पास लेकर के आ जाओ, मैं आपको आराम दूंगा। बहुत से थके मांदे मेरे पास। फिर ये भी लिखा है, मेरा जुआ, मेरा बोझ, ये अपने एडे भार लैके अपनी परेशानियां, अपने बोझ, अपनी जो भी तुहाडी लाइफ दे विच ऐसियां गल्लां ने जिहदे तो तुसी परेशान हो चुके हो, तुसी थक चुके हो, यीशु कोल आ जाओ। हर बात का हल यीशु के पास। कोई भी मसाइल है आपकी जिंदगी में, अपना हर मसला लेकर, अपना बोझ लेकर, अपनी बीमारी लेकर, खानदानी परेशानियां लेकर, जो कुछ भी है यीशु के पास आ जाओ। हकीकी रोटी को खाओ, जिंदगी की रोटी को खाओ, हमेशा की जिंदगी को पाओ जो खुदावंद के कलाम में लिखा हो। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और 10वीं आयत में लिखा है, मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। कौन जिंदगी कसरत की पाएगा? जो उसके पास आ जाता है, जो रूह की ग़िज़ा हासिल करने के लिए उसके पास आ जाता है, जो कलाम पढ़ते हैं, जो दुआ करते हैं, जो उसकी प्रस्तुति करते हैं, जो अपना दिल उसके सामने खाली कर देते हैं। खुदावंद उनको बरकत देता और कसरत की बरकत देता है, और कसरत से अपने आसमान को खोल के वो आपको अपनी बरकतों से माला माल खुदावंद के पास, यीशु के पास हकीकी रोटी को खाना। दुनियावी रोटी तो हम खाते ही रहते हैं अपनी बदनी तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, लेकिन रूह की तंदुरुस्ती के लिए हमारी रूहें भी जख्मी हैं। हमारी रूहें भी कई दफे ऐसे लोगों को जख्मी, क्यों? ईमान में कमजोर, ईमान में डामाडोल, जख्मी। यीशु के पास वो आपके जख्मों को धोएगा, वो रूहानी तौर पर आपको शिफा देगा, वो रूहानी तौर पर आपको तंदुरुस्ती दे देगा। हम बहनें हर बुध को जमा होती हैं, तूफान आए, बारिश आए, छतरियां लेके आ जाती हैं, घबराती नहीं है। ईस्टर का दिन था, हम कैंडल्स जला के बाहर जाने वाले थे, तो जो बहनें मेरे साथ बुध की इबादत में हर बुध को शामिल होती हैं, तूफान हो, गर्मी हो, पानी और रिक्शे करा के पहुंच जाते, क्योंकि उनके अंदर रूह की खुराक हासिल करने के लिए बेचैनी है, तलब है उनके अंदर। हम तलब नहीं रखते, कई लोग कहते भी हैं आओ 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 बरकत पाओ,
लेकिन मैं इसराइल दिन अपनी बहनों को कह रही थी ऐसे इकट्ठा कर के, आओ नी भैणा यसू की कब्र पे चलिए कैंडल्स लैके यसू नूं जिंदा पावांगे। और मेरे अंदर इस कदर रूह की जो तड़प थी अपनी बहनों के लिए कि जो उस टाइम जो सोने का टाइम है वो भी खुदावन के लिए बाहर निकल रही हैं, नारे लगा रही हैं, गीत कर रही हैं। तो हम जो चंद बहनें इस इबादत में हम शामिल होती हैं, वो हमें पता है कि हम क्या बरकत को पाते हैं, हम क्या तकबीयत पाते हैं। हम गीत गाती हैं, दुआएं करती हैं, सारी बहनें मिलकर दुआएं करती हैं, शफात करती हैं। अब सारी कलीसिया के लिए ये दुआएं करती हैं। तो खुदावन हमें बरकत देता है। हम खुदा का कलाम भी सुनती हैं, लोग भी बरकत पाते हैं, हम सारी बहनें भी बरकत पाती हैं, इसलिए कि हम उसकी रिफाकत में आते हैं, इसलिए बरकत पाती हैं। हमें न गर्मी का डर न सर्दी का डर। हम कहती हैं बेशक हम इंसान होते हुए एज के साथ साथ बदनी तौर पर हम कमज़ोर होती चली जाती हैं, लेकिन खुदावन ने हमें जोर बख्शा हुआ है, हमें कुव्वत बख्शी हुई है, हमें दिलेरी बख्शी हुई है। हम घबराते नहीं हैं हालात से, कहते हम तो तंदुरुस्त हैं। खुदावन का शुक्र है कि वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता और अपनी रिफाकत में आने का फजल अता करता है। सो आप भूखे प्यासे उसके पास आओ, वो तुझे आपको आसूदा करे और फिर कलाम की नदियां आपके अंदर से बह जाएं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 45वीं आयत से 51 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु ने उन्हें बड़े सब्र से और भेद की बात उन पर जाहिर की, बड़े प्यार नाल ते सब्र नाल सुने। आज भी हम अपने लोगों को, अपने प्यारों को, ईमानदार लोगों को, खुदा के लोगों को आपको कहते हैं सब्र न सुनो ते प्यार न सुनो। यीशु ही की ये जिंदगी दी रोटी है, बड़ा भेद है। आसमानी रोटी, प्यार के साथ उसने आसमानी रोटी के भेद के बारे बताया। जो मुझ पर ईमान लाता है अब्दी जिंदगी पाता है। आज भी यीशु आपको कह रहा है, जो मुझ पर ईमान लाता है अब्दी जिंदगी पाता है। जो मुझ पर ईमान लाता है अब्दी राहत पाता है। जो मुझ पर ईमान लाता है अब्दी कुव्वत पाता है। जो मुझ पर ईमान लाता है अब्दी दिलेरी पाता है। खुदावन हमें आखिर तक ऐसी कुव्वत, दिलेरी, सेहत, तंदुरुस्ती देगा कि हम उसका जलाल जाहिर करें। जहां भी जाए उसका जलाल जाहिर करें। जिस तरह हम गीत गाते हैं, मैं जहां भी जाऊं तेरा जलाल जाहिर कर। हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो, और वो जो हकीकी रोटी हम लेते हैं हम उसको बांटते हैं, ताकि दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए, मिसाल बन जाए, बरकत का बाइस बन जाए। हमें खुदावन के पास आना। वो उस वक्त जो बियाबान में मूसा के साथ फिरते थे, उन्होंने आसमानी मन खाया, खा के क्या हुआ? मर गए। लेकिन जो ये रोटी जो आसमान से उतरी है वो क्या है? वो रोटी खाते हैं, वो अब तक जिंदा रहते हैं रूहानी तौर पर। ऐसी नहीं कि रूहानी रोटी खाती जड़ी आसमान तो उतरी जैसे खा के मर गई, लेकिन हमारी रूह हमारे अंदर जिंदा है। कहते हैं जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हम जो है जिंदा खुराक को जब हम खाते हैं, यीशु जो हमारी रोटी है उसको हम खाएंगे। यीशु ने अपने बारे में कहा, जिंदगी मैं हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी पाएगा। सो आज जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हमें अब्दी रोटी
हकीकी रोटी खाने के लिए यस्सु के पास आना है। हमने अबलीस का कहना नहीं मानना है। हमने ये नहीं कहना अज बड़ी गर्मी सी ऐ ते बारिश पैण ही आली सी असी तो फिर उत्थे रुक गए। ये बहाने हैं, ये शैतान हमारे ज़हनों में डालता है ये बातें, है ना, हीले बहाने। लेकिन हमने खुदावंद के पास आना है, उसकी रोटी को खाना है, यीशु की हकीकी रोटी, अपनी प्यास को बुझाना है, उस पानी को पीना है जिसे पीकर हमारे अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी, लोग बरकत पाएंगे। सो आज सबको मैं यही कहूँगी, दुनिया के काम ते होंदे ही रहने हैं। हमें जब भी मौका मिले हमें यीशु के पास आना है ताकि हमारे खानदानों में इत्मीनान हो। आज बहुत से लोग मैंने देखे हैं, रुपया पैसा बहुत कुछ है, दुनिया जहान की नेमतें हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं है, घरों में सुकून नहीं है, टेंशन है, भटकते फिरते हैं। क्यों? उन्होंने यीशु को छोड़ दिया, देख लांगे यीशु नहीं। लेकिन हमने यीशु का पल्ला थाम लेना है, भूख और प्यास रखनी है कि हम जब यीशु के पास जाएंगे वो हमें आसूदगी अता करेगा, वो हमें बरकत देगा। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मैं आपको हर रोज़ याद करती हूँ। किसी को मैंने कहा कि फ़ोन पे बात हो रही थी, कहती है मामा जी, मुझे मामा कहती हैं, मामा जी बड़े दिन के बाद मुझे फ़ोन करना पड़ा आपको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपको हर रोज़ याद करती हूँ। कहती कैसे? मैंने कहा हर रोज़ जब मैं दुआ करती हूँ, हालांकि वो एक और शहर में रहती हूँ, हर रोज़ मैं जब दुआ करती हूँ लिस्ट में आपका नाम है, आपका शौहर और बीवी का मैं नाम लेती हूँ, इसलिए मैं याद करती हूँ, इसलिए मैं आप सबको हर रोज़ याद करती हूँ। ये अपने दिल में रखें कि हमारी मामा हमें हर रोज़ याद करती हैं, हर रोज़ याद करती हूँ। तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद आपको बरकत दे और रोटी खाने के लिए आते चले जाएं, यीशु के पास आते चले जाएं, हीले बहाने ना बनाए, हमेशा की जिंदगी यीशु कोले, दुनिया ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ अपनी सरफराजी ਲਈ, अपनी ज़रूरतां ਲਈ, लेकिन हमें खुदावंद को टाइम देना, वक्त देना है। खाने से दुनियावी भी खाने हैं, लेकिन रूह दी ग़ज़ा भी असी खाण ਲਈ हर हफ्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ जाइए। खुदा